હેલો એન્ડ વેલકમ એવરીવન. થેન્ક યુ વેરી મચ બધા જે જોઈન થયા છે બધાને. અને આજનો સેશન હેલો એન્ડ વેલકમ એવરીવન. ઓકે, તો આજનો સેશન આપણે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે. પણ આજનો સેશન જે આપવાના છે એવા પ્રનીતાબેનનું આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન સાંભળીશું તો આપણને વધારે મજા આવશે, કારણ કે એ આ ફિલ્ડના માસ્ટર છે. એવું પહેલા આપણે એમના વિશે જાણી લઈશું કે શું બીજું કરે છે. શી ઇઝ નોટ ઓનલી લવર ઓફ એન્વાયરમેન્ટ, પણ એમને વર્ક લેવલ પર જોવા જઈએ તો શી ઇઝ માઇન્ડ પાવર કાઉન્સેલર, મુદ્રા થેરાપિસ્ટ, ગર્ભ સાધના ટ્રેનર, એન્ટરપ્રેનર અને ફેશિયલ યોગા ટ્રેનર. આ તો વર્ક એમનું લિમિટેડ કીધું છે. એ ઘણી બધી વસ્તુમાં કામ કરે છે. જો તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે એમને માટીના વાસણો વિશે જે ઇન્ફોર્મેશન હતી એના માટે પણ આપણે એમને બોલાવ્યા હતા, અને એમને પ્રેક્ટિકલી ઘણા બધા યુઝીસ કરીને પછી આપણી સાથે આવ્યા હતા અને બહુ સરસ ઇન્ફોર્મેશન આપી હતી માટીના વાસણો વિશે. ખાલી માટીના વાસણો નહીં, પણ સાથે સાથે તાંબા, પિત્તળ, સોનું, ચાંદી એ બધું જ વાપરવું જોઈએ આપણી પરંપરાગત જે આપણે પહેલા વાપરતા હતા એ પ્રમાણે, અને કેમ વાપરવું જોઈએ એ બધું જ આપણે એમને જણાવ્યું હતું. પણ આજે સ્પેશિયલી આપણે એમને મુદ્રા થેરાપી માટે બોલાવ્યા છે. તો મલ્ટી ટેલેન્ટેડ એવા પ્રનીતાબેન, અને એ MBA કરી ચૂકેલા છે. વડોદરામાં લગભગ 8 વર્ષથી રહે છે. એમને 3 વર્ષની નાની બાળકી છે. એમના હસબન્ડ છે એ બિઝનેસમાં છે. સાથે સાથે એમના જે ઇનલોસ છે, મધર ઇન લો અને ફાધર ઇન લો, એ પણ આટલી ઉંમરે હજુ એક્ટિવ છે અને વર્કિંગ છે. તો એ પોતે પણ એટલા એક્ટિવ છે, એટલા માટે જ કદાચ આપણી સાથે છે. પ્રણીતાબેન, હું બહુ ટાઈમ નહીં લેતા, ફ્લોર સીધો તમને આપી દઈશ, કારણ કે બધા આજના સેશનની મજા લેવા માટે એકદમ ઉત્સુક છે. તો આઈ વેલકમ યુ પ્રણીતા મેડમ. અને બધાને એક ખાસ રિક્વેસ્ટ છે કે માઇક પ્લીઝ મ્યુટ રાખજો, અને ખાસ કરીને આપણે લાસ્ટમાં જે ક્વેશ્ચન આન્સર્સ કરવા હોય તો અત્યારે આપણને એક સરસ સમય જોઈશે, તો અત્યારે માઇક બંધ રાખીશું તો એમના ફ્લોમાં એ વાત કરી શકશે, રાઈટ? અને લાસ્ટમાં એક અનાઉન્સમેન્ટ છે, તો આપણે બધી ઇન્ફોર્મેશન લાસ્ટમાં લઈશું. તો વેલકમ પ્રણીતા મેમ, ફ્લોર ઇઝ યોર્સ નાઉ. Thank you. Hello, viewers. So, before I start this session of Mudra Therapy, I would like to thank Shandar Group and all the viewers for joining this session. आज जो हम सीखने वाले हैं वो मुद्रा थेरेपी है. तो इसके पहले कि हम जाने कि मुद्रा थेरेपी क्या है, पहले हम जान लेते हैं कि हमारे इंडिया एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी थेरेपीज है जिसके थ्रू आप अपने बॉडी को और माइंड को ठीक कर सकते हैं. कुछ ऐसी है जिसमें मेडिसिन की जरूरत होती है और कुछ ऐसी जिसमें हम बिना मेडिसिन के खुद को ठीक करते हैं. उसे कहा जाता है जिस उपचार पद्धति को जब आप बिना मेडिसिन के जब आप ठीक होते हो उसे कहा जाता है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिसेस, मतलब मेडिसिन का ऑल्टरनेटिव. जैसे बहुत कुछ है, सुजोक है, एक्यूप्रेशर है, रेकी है, एनर्जी थेरेपी है, माइंड पावर है, उसके बाद में कलर थेरेपी है, ऐसी बहुत सारी चीजें है. उसमें से एक है मुद्रा थेरेपी, जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं. मुद्रा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो घर का अगर एक व्यक्ति भी कोई सीख ले तो अपने घर पे बैठे बैठे अपने पूरे परिवार को वो ठीक कर सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. अब मुद्रा थेरेपी में जो उपयोग, बेसिकली जो थेरेपी है ये आधारित है हमारे 5 तत्वों पे. आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर 5 तत्व है और वही 5 तत्व हमें बाहर भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि. ठीक है, ऐसी चीजें बाहर भी है. बाहर अगर हम देखने जाएंगे तो बाहर जल है, नदियों पानी है, वो जल है. पृथ्वी है जिसपे हम जी रहे हैं. उसके बाद आकाश जो हम देख रहे हैं खुला. उसके बाद में वायु मतलब हवा, और अग्नि, अग्नि भी है बाहर. और वही तत्व हमारे अंदर भी है. हमारे अंदर जल है, सबको पता है 70% हमारे बॉडी में वाटर है. उसके बाद में पृथ्वी. अब पृथ्वी को हम कैसे कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी. आप सोचना अगर आपको इसका जवाब मिलता है तो. उसके बाद आकाश. आकाश मतलब खुला. जैसे ये हमारा जो नोज है, आप देखो
ये खुला होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दैट इज आकाश तत्व। उसके बाद वायु, हमारे बॉडी में वायु है, और अग्नि हमारे अग्नि है, मतलब तापमान, तापमान को हम अग्नि से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये जो मुद्रा थेरेपी, इसको हस्त मुद्रा थेरेपी बोलते हैं, क्यों ये हाथों के ऊपर आधारित है और उससे भी ज्यादा उंगलियों पे आधारित है। ठीक है, अब हमारे उंगली ये 5 तत्वों को दर्शाती है। ठीक है, तो हम इसको प्रैक्टिकली जहां पे भी आप बैठे हैं अपने हाथों को ऐसे रखिए, मैं आपको बताते जाऊंगी, यू कैन लर्न लाइक दिस। दिस इज जल तत्व। हमारे हाथों की सबसे छोटी उंगली को हम जल तत्व कहते हैं। उसके बाद आती है रिंग फिंगर, जिसे हम पृथ्वी तत्व कहते हैं। उसके बाद आती है सबसे बड़ी मिडिल फिंगर, जिसको आकाश तत्व, और उसके बाद सबसे पहली उंगली वो है वायु, और अंगूठा होता है अग्नि। ठीक है, तो ये जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। तो जल, जे फॉर, एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ, अभी 5 सेकंड में आपको याद हो जाएगा। जे पी ए वी ए, जे पावा, ये वर्ड याद कर लेना। अब जे पावा बोलोगे और कभी किसी ने आपको पूछा कि ये कौन सा तत्व है, तो पहले ऐसे याद करना, जे पावा, जे पावा, जे पी ए मतलब आकाश। तो इससे आपको बहुत जल्दी रिकॉल आप कर पाओगे, ये मेरी टेक्निक है याद करने की, तो इससे आप बहुत जल्दी याद कर सकते हो। अब ये जो मुद्रा थेरेपी है, आगे बहुत सारी मुद्रा है अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगी, उसके बेनिफिट्स भी बहुत है। लेकिन कुछ बातें हैं मुद्रा थेरेपी के बारे में जो हम जान लेंगे। जैसे मुद्रा थेरेपी कोई भी उम्र का व्यक्ति, अगर वो 3 साल की बच्ची हो वो भी मुद्रा कर सकती है, और जो बुजुर्ग है वो भी कर सकते हैं। आप कोई भी समय में मुद्रा कर सकते हैं। जैसे अगर आप कुछ मुद्रा ऐसी है जो खाना खाने के तुरंत बाद भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप खाना खाने के तुरंत बाद आप लोग वज्रासन में बैठते हैं, जबकि योग नहीं कर सकते, बट वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो वज्रासन एक ऐसी पोजीशन है जो चलती है, वैसे कुछ मुद्रा भी ऐसी जो भोजन के बाद चलती है। अब ये मुद्रा थेरेपी हमारे शरीर और मन को स्वस्थ करने के लिए है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसके लिए आप मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, और कुछ रोग ऐसे जिसके आप डॉक्टर के पास तुरंत नहीं जाते। जैसे आपको थोड़ी सी एसिडिटी हो गई, आपको थोड़ा सा पैर में दर्द है, आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं भागेंगे। आपको गैसेस की प्रॉब्लम हो गई, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में सफर होने से अच्छा है कि आप मुद्रा थेरेपी जैसी चीजें सीख ले, और 5-10 मिनट में ही आपको रिलीफ मिल जाता है। तो इसमें कुछ मुद्रा ऐसी भी है, कुछ मुद्रा ऐसी है मुद्रा जिसमें आपको कोई रोग नहीं है, लेकिन आपको स्वस्थ रहना है। तो जनरली जब आप दवाई क्यों खाते हैं? जब आपको रोग होता है तब आप दवाई खाते हैं, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप तब खाते हैं जब आप लाइफ लॉन्ग अच्छे रहे। तो वैसे इसमें कुछ मुद्राएं ऐसी भी है, कुछ मुद्राएं ऐसी है जिसमें आपका माइंड बहुत शार्प होता है, कुछ मुद्राएं ऐसी है जिसमें आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। ऐसी बहुत वैरायटी है अपने पास में। ठीक है, मुद्रा थेरेपी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप इसको 15 मिनट, अगर आपको कोई रोग है तो आपको शुरुआत 15 मिनट से 45 मिनट तक की करके आपको करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप आपके बॉडी में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंजेस या बैलेंस लाना चाहते हैं, तो 45 मिनट का एक समय है जो कि साइंटिफिक निर्धारित किया हुआ है ट्रीटमेंट में, वो आपको लगता ही है। ठीक है, ओके, तो चलिए अभी हम आगे आगे और इस पे डिस्कशन करेंगे। अब हम हमारी मुद्रा प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है ज्ञान मुद्रा। मुद्रा आप सोते सोते भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, इसका कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है, ओके, सो आपको क्या करना है, ये आपके हाथ है, वैसे आपको दोनों हाथों से करना चाहिए बेटर इफेक्ट के लिए। लेकिन अगर आपका एक हाथ बिजी है तो आप एक हाथ से भी कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा कैसे बनानी है आपको? आपके हाथों की जो पहली उंगली है और आपका जो थंब है, उनका ये जो टिप है, टोक है, इनको हल्के से टच करना है, और बाकी जितनी भी आपकी उंगलियां है वो आपको स्ट्रेट रखनी है। ठीक है, और आपको बैठ जाना है इस तरीके से। आपने ऋषि मुनियों को जनरली देखा होगा, वो ये वाली मुद्रा करते हैं। आपको ऐसे नॉर्मल जैसे आप आलती पालती मार के बैठते हैं, वैसे आपको ये मुद्रा आप देख सकते हैं। इज इट क्लियर? आप आपका ये क्लियर है? यस ओके, ओके, इस तरीके से आपको बैठ जाना है। अब इसके फायदे क्या है? एक मुद्रा के कईयों फायदे हैं, इसलिए मैं आपके साथ जितने भी इसके बेनिफिट्स है मैं सारे पढ़ती जाऊंगी।
एकाग्रता बढ़ती है। अगर ये मुद्रा अगर आप अपने बच्चों को करवाते हैं पढ़ाई करते समय तो बहुत अच्छे इफेक्ट्स आएंगे। मतलब उनको बोलो पढ़ाई जब स्टार्ट करे तो ये मुद्रा लेके बैठ के फिर एक हाथ से वो अपने नोट्स पढ़े और एक हाथ से ये मुद्रा लेके बैठे, इससे उनका कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब उनको रिकॉल करना होगा वो सारे पढ़ाई आंसर्स जो भी वो पढ़े वो इजिली रिकॉल कर पाएंगे। चंचलता, चिड़चिड़ापन कम होता है। बहुत बार हमारे मन के अंदर बेचैनी होती है, तब भी आप ये मुद्रा कर सकते हैं। ये मुद्रा आपको शांत करती है, इसलिए ऋषि मुनियों जो संत होते हैं वो जनरली इस मुद्रा के पोजीशन में आपको दिखेंगे, क्योंकि उनको शांति चाहिए और उनके लाइफ में बहुत शांति होती है, इसलिए इस मुद्रा की वजह से। उसके बाद अगर आपको नाखून खाने की आदत है, बहुत लोग ऐसे ऐसे नाखून खाते हैं, क्यों? अंदर बेचैनी होती है एक्चुअली, और वो लोग बहुत पैर भी हिलाते हैं, बहुत लोग पैर हिलाते हैं, अंदर में एक बेचैनी होती है। इस सारी चीजों को ये मुद्रा कम करती है। उसके बाद बुद्धि, मेमोरी के बारे में आपको मैंने बताया। अगर आपको नींद नहीं आ रही है उस टाइम भी आप ये मुद्रा लेके अगर लेट जाए तो आपका मन शांत होता है और आपको नींद आ सकती है। ठीक है, ओके। सो अभी नेक्स्ट मुद्रा है हमारी, ये हो गई हमारी ज्ञान मुद्रा। अब हम आगे जाएंगे सेकंड मुद्रा, वायु मुद्रा। ठीक है, वायु मुद्रा कैसे बनानी है आपको? ये वाली जो फिंगर है इसको आपको अंगूठे के जो बॉटम है उससे टच करना है और उसके बाद अंगूठे से इसको प्रेस करना है लाइक दिस, और बाकी तीनों उंगलियां स्ट्रेट। ये हो गई आपकी वायु मुद्रा। ठीक है, ओके। आपको आपका पहला फिंगर को अंगूठे के बॉटम से छूना है और अंगूठे से ऐसे इसके ऊपर रखना है पहले फिंगर पे, बाकी उंगलियां स्ट्रेट रखनी है। दिस इज वायु मुद्रा। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? हेलो। हेलो, हाँ ओके। हाँ। ये होगी वायु मुद्रा। अब वायु मुद्रा के जो बेनिफिट्स है, आपके बॉडी में अगर बहुत ज्यादा वायु बढ़ जाती है जैसे गैसेस, उस समय आप ये मुद्रा कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जब भी वात रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं इसको, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, गठिया रोग है, पैरालिसिस है, ऐसे कोई भी रोग जो बढ़ी हुई वायु की वजह से होता है, तब आप वायु मुद्रा कर सकते हैं। अब बहुत बार क्या होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा प्रॉब्लम है? तो आप डेफिनेटली जब आपका प्रॉब्लम बढ़ता है, वैसे आपको एक पीडीएफ फाइल मैं भेजने वाली हूँ जिसमें सारे बेनिफिट्स लिखे हैं, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे सब लोग, अपने घर में एक कॉपी रखो। जब भी कोई प्रॉब्लम आए उसको निकालो, वो प्रॉब्लम पढ़ो, अच्छा मुझे तो ये प्रॉब्लम है, उसके लिए ये वाली मुद्रा करनी है, तो आप वो मुद्रा कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम बड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको ये प्रॉब्लम है। देन फाइंड इट आउट, इफ यू विल गेट द मुद्रा, इसमें मोस्टली 50 से भी ज्यादा रोग इसमें कवर किए हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा एंड देन यू कैन फॉलो दिस एनी ऑफ द मुद्रा जो भी आपको प्रॉब्लम है। अब मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। आपका कमर दर्द, घुटने का दर्द, हड्डी में दर्द है तो वायु मुद्रा काम आती है। गठिया रोग में काम आती है। उसके बाद में आपको अगर पार्किंसंस, पैरालिसिस, स्पॉन्डिलाइसिस, ये जो भी वात रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें वायु मुद्रा आपको काम आती है। ठीक है, ओके। नाउ अभी हमारा थर्ड मुद्रा आकाश मुद्रा है। ठीक है, अब आकाश मुद्रा में आकाश तत्व और थंब, इसके टिप को जोड़ना है, बाकी तीनों उंगलियां स्ट्रेट रखनी है लाइक दिस। इस तरीके आपको प्रैक्टिस से आएगा। आपकी जो फिंगर्स है वो उस लेवल पे प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिस करना है। आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसके बाद में वो हो जाएगा। ठीक है, फिर से आकाश मुद्रा, आपका जो आकाश मिडिल फिंगर के टो को अंगूठे के टो से जोड़ना, बाकी तीनों उंगलियां के बाद में अगर आपके बॉडी में आपको लग रहा है कि एनर्जी की कमी लग रही है अभी तुरंत, तो आप ये मुद्रा कर सकते हैं। और आपको कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सुस्ती ज्यादा लगती है तो भी आप ये मुद्रा कर सकते हैं। इससे आपके इसमें उत्साह, एनर्जी, एक्साइटमेंट बढ़ती है। अगर आपको कान में दर्द है और अगर दांत में थोड़ा बहुत पेन है तो भी आप ये वाली मुद्रा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मुद्रा, शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा आपको कैसे बनानी है? ये वाला जो मिडिल फिंगर है इसको आपको अंगूठे के टोक से जोड़ना है, अंगूठे के आपको बॉटम से जोड़ना है और अंगूठे से हल्का सा प्रेस करके ये तीनों उंगलियां स्ट्रेट रखनी। ओके,
ठीक है, फिर से बनाएंगे। जो आकाश तत्व शून्य मुद्रा, इसको आपको अंगूठे के बॉटम से जोड़ना है, टच करना है एंड देन इसके ऊपर प्रेस करना है, अंगूठे से टच करना है आकाश तत्व को और तीनों उंगलियां स्ट्रेट। ये हो गई शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा स्पेसिफिकली कान के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए है। मतलब अगर कोई बहरा है जिसको सुनाई नहीं देता है, उसके लिए भी ये मुद्रा बहुत कारगर है। कान का ऑपरेशन हुआ है, कान के पर्दे में प्रॉब्लम है, कान से पस निकल रहा है, पानी निकल रहा है, वॉट एवर प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम, उस ईयर्स प्रॉब्लम, उसके लिए आप ये मुद्रा को यूज कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली कान के लिए है। ठीक है, ओके। अब हमारा है नेक्स्ट मुद्रा इस पृथ्वी मुद्रा। ठीक है, पृथ्वी मुद्रा में जो आपका अनामिका उंगली, रिंग फिंगर, पृथ्वी तत्व, इसके टिप को अंगूठे के टिप से जोड़ना है और बाकी तीनों उंगलियां आपको स्ट्रेट रखनी है। पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी तत्व के टिप को अंगूठे के टिप से जोड़ना है, हल्का सा प्रेस करना है, ज्यादा दबाना नहीं है और तीनों उंगलियां स्ट्रेट रखनी है। ये पृथ्वी मुद्रा। मुद्रा थेरेपी में आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रेशर नहीं करना है, ऐसे मतलब एकदम रिलैक्स होके, लाइक एकदम इसको टच किया, तीनों उंगली स्ट्रेट रखी और ऐसे बैठ, दैट्स इट। बहुत तनाव देके नहीं करना है, वरना आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अनकंफर्टेबल आप रहोगे तो ज्यादा देर उसको कर नहीं पाओगे। पृथ्वी मुद्रा के अपन फायदे देखते हैं। इससे आपकी बॉडी में अगर कोई वीकनेस है, कमजोरी है, वो आपकी दूर होती है। आपके स्किन में ग्लो आता है। अगर आप बहुत खूबसूरत दिखना चाहते हैं, एक चमकदार आपका चेहरा चाहते हैं, पर्सनालिटी, तो पृथ्वी मुद्रा बहुत ज्यादा कारगर है। उसके बाद में स्फूर्ति और शक्ति को भी ये बढ़ाता है। अगर आपके मेंटली अगर आप थके, आपने कभी नोटिस किया होगा कि फिजिकली नहीं थकते, मेंटली भी बहुत बार थकते हैं, जबकि हम बहुत बार फिजिकल काम, आजकल तो हमारा फिजिकल काम इतना होता नहीं है, बट मेंटली बहुत ज्यादा होता है। तब आपको मानसिक थकान लगती है, उस टाइम पे आप ये मुद्रा कर लीजिए, आपको 10 से 15 मिनट में फ्रेशनेस लगेगी। आपका इससे वजन भी बढ़ता है। तो अगर कोई ऐसा है ना जो दुर्बल है, दुर्बल की बात कर रहे हो, मतलब आप सोचोगे मैं, मतलब आप तो अच्छे हो, अगर आप ये मुद्रा कर लोगे तो आपका वजन ऐसा नहीं होता। मुद्रा थेरेपी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके बॉडी में जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करता है। मतलब अगर आपके बॉडी को वजन बढ़ाने की जरूरत नहीं है लेकिन मानसिक दुर्बलता है, तो मानसिक दुर्बलता को ही ठीक करेगा, वो आपका बिना मतलब वजन नहीं बढ़ाएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि एक इसके 10 फायदे हैं, 10 में से तो हमको 4 चाहिए ही नहीं, तो 4 नहीं मिलेंगे। आपकी बॉडी में जो इम्बैलेंस है वो सिर्फ उसी को बैलेंस करेगा। ठीक है, ओके। नाउ त्वचा के बारे में तो मैंने आपको बताया कि दमकती त्वचा और रंग निखरता है। ओके, सो अभी हमारा जो 6th मुद्रा है दैट इज सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा हमको कैसे करनी है? ये जो पृथ्वी मुद्रा है, जो अनामिका उंगली, इसको अंगूठे के बॉटम से टच करके अंगूठे से इसी पे प्रेस और बाकी तीनों उंगलियां स्ट्रेट। फिर से बनाएंगे। पृथ्वी पृथ्वी तत्व वाला, इसको अंगूठे के बॉटम से टच, उस पर प्रेस एंड देन तीनों। ठीक है, ये हो गया सूर्य मुद्रा। ये मुद्रा से वेट लॉस होता है, ये मुद्रा से वेट लॉस होता है। ठीक है, हाँ, सबके चेहरे पे स्माइल आ गई। ठीक है, ओके। उसके बाद में ये मुद्रा पीरियड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी आपकी मुद्रा काम आती है। मेनोपॉज रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, इसमें भी आपको ये काम आती है। ये मुद्रा में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, आपको थायराइड प्रॉब्लम नहीं है, आपको वजन नहीं, तो फिर आप नहीं करेंगे ये वाली चीज, क्योंकि इसमें वेट लॉस होता है तो थोड़ी हीट बढ़ती है अपने बॉडी में, और इसलिए इसको स्पेसिफिकली प्रॉब्लम के लिए करना है। ठीक है, ओके। एक बार हम इसको थ्योरेटिकली पूरा पढ़ेंगे। अगर आपके इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का भी अगर ज्यादा इश्यू है तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इससे वेट लॉस होता है। तो एक्स्ट्रा फैट ये चर्बी को घटाता है, तो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल को भी घटा देगा। कोलेस्ट्रॉल कम होता है, इससे आपका वेट लॉस होता है, अपचन की तकलीफ है तो भी दूर होती है। थायराइड प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा बेस्ट है ये मुद्रा। उसके बाद मासिक धर्म, पीरियड्स, अगर पीरियड्स में आपको पेट दर्द है या दूसरा कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें ही कर सकते हैं। ये मुद्रा आपको पद्मासन में बैठ के करनी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो भी आप ये मुद्रा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ द 7th मुद्रा इज वरुण मुद्रा। ठीक है, वरुण मुद्रा सबसे छोटी फिंगर के टिप को, टो को अंगूठे के टिप से जोड़ना, बाकी तीनों उंगलियां स्ट्रेट।
दिस इज वरुण मुद्रा. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर स्किन प्रॉब्लम. लेकिन स्किन प्रॉब्लम कैसे है? ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है. आपकी बॉडी में अगर पानी की कमी है, जनरली स्किन का प्रॉब्लम कब आता है? जब आप पानी डॉक्टर के पास कभी गए होंगे जो स्किन के लिए स्पेसिफिकली फॉर पिंपल्स, वो ये बोलेंगे पानी ज्यादा पियो या ब्लड मतलब अच्छी चीजें खाओ, ब्लड प्यूरिफाई होता है तब आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है. तो ये मुद्रा करने से आपकी स्किन अंदर से क्लीन होगी. ठीक है, आपको सैंपल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उसके अंदर पानी की कमी को दूर करेगा. बहुत बार ऐसा होता है कि पानी ज्यादा पीते हैं लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में वो ग्लो नहीं आता या प्रॉब्लम रहती है, तो ये उसको ठीक करेगा, अंदर जो इम्बैलेंस उसको ठीक करेगा. ठीक है. उसके बाद में आपकी जो भी त्वचा प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है जैसे सोरासिस है, कोई खुजली बहुत ज्यादा आती है स्किन पे बॉडी पे, तो आप ये मुद्रा कर सकते हैं. ओके. ना अब है प्राण मुद्रा. प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा हमको कैसे बनानी है? ये जो दोनों फिंगर है, अनामिका एंड सबसे छोटी वाली इसको तर्जनी, सबसे छोटी वाली फिंगर एंड अनामिका उंगली के टिप को अंगूठे के टिप से आपको जोड़ना है और बाकी दोनों को स्ट्रेट रखना है. फिर से बनाएंगे. अनामिका और सबसे छोटी के टिप को अंगूठे के टिप से जोड़ना और बाकी दोनों को, वायु और आकाश को आपको दोनों को स्ट्रेट रखना. ये बन गई प्राण मुद्रा. अब प्राण मुद्रा के नाम से आप समझ गए होंगे, अगर आपके शरीर में प्राण नहीं है मतलब जो आदमी चला गया उसको तो वो जिंदा नहीं करेगा, बट कोई रह के भी जो ठीक से मतलब आप समझ जाओ वो जोश के साथ नहीं रहता है तो ये उसमें प्राण लाता है. ठीक है. हम ऐसे बोलते हैं ना कि आप बेजान जैसे रहते हैं कोई, तो उसमें जान डालने का काम करता है. तो आप ये मुद्रा कर सकते हैं. अब इससे क्या होता है? प्राण शक्ति बढ़ती है, मतलब इम्यूनिटी बढ़ती है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा तो खा रहे हैं लेकिन आपके शरीर में वो बल नहीं है, ऐसा होता है ना, तो आप ये मुद्रा कर सकते हैं. इससे आपकी बॉडी में जो विटामिन की कमी है वो भी पूरी होती है. बहुत बार ऐसा होता है कि हम अच्छा खाते हैं ना, हम तो खाते ही अच्छा, लेकिन फिर भी हमें वो पोषक तत्व नहीं मिलते क्योंकि वो प्राण मुद्रा करने से आपको मिलेंगे. वो बॉडी को इम्बैलेंस को बैलेंस करेगा. ठीक है ना. प्राण शक्ति तेज होती है तुरंत. उसके बाद जैसे मान लीजिए दर्शना जी बहुत प्रोजेक्ट लेते हैं, बहुत काम करते हैं, आप थक गए, आपको लग रहा है थोड़ा सा ऊर्जा की जरूरत है, आप ये मुद्रा कर सकते हैं. ओके. आपको रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है, आंखों की तकलीफ आपको मिलती है. थैंक यू. उसके बाद में आंखों की तकलीफें कम होती. वैसे एक्चुअली सभी लेडीज, जितनी भी लेडीज जो हाउस वाइफ भी है, काम हम लेडीज लोग पूरा दिन काम करते हैं और हम लोग हमारे पे ध्यान नहीं देते एक्चुअली. तो इसलिए ये मुद्रा आज से रूल बनाइए, ये मुद्रा आपको 10 मिनट तो भी आपको करनी है. ठीक है. ओके. कमजोरी आपकी दूर होती है. चक्कर अगर आना, किसी को चक्कर का भी प्रॉब्लम होता है कि कमजोरी से हल्का सा चक्कर लग रहा है, तो भी आप ये मुद्रा कर सकते हैं. विटामिन की मात्रा बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है. ठीक है. आप देख सकते हैं कि एक मुद्रा के कितने सारे फायदे हैं. अब है शंख मुद्रा. शंख मुद्रा में आपको दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी. अब आपको इसमें शंख का आकार बनाना है. पहले मैं बना के दिखाऊंगी, फिर आपको बनाना है स्टेप बाय स्टेप. कोई भी एक हाथ का अंगूठा, कोई भी एक हाथ, मुझे ये कंफर्टेबल है तो मैं लेफ्ट लेती हूँ. कोई भी एक हाथ का अंगूठा लिया, वो ऐसे बांध ली मैंने और दूसरे हाथ से मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया. ठीक है. और उसके बाद ये जो 4 उंगली उसको इसके ऊपर रख दी और पहली जो फिंगर है इसको इससे टच किया और तीनों बाकी उंगलियों को स्ट्रेट रखा लेफ्ट हैंड की. शंख का आकार बन गया. देखो शंख का आकार बन जाता है. दिखा, देख रहे हैं, सबको क्लियर है? ओके. फिर से बनाएंगे मेरे साथ. आपने एक लिया, लेफ्ट हैंड लिया, वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू. उसके बाद में दूसरे हाथ से इसको पकड़ लिया इस तरीके से. ठीक है. पहले ऐसा लिया, इसको पकड़ लिया, फिर चारों उंगली को इसके ऊपर रख के जो पहली उंगली है ना उसको राइट हैंड के थंब से टच किया, बाकी तीनों उंगलियां ऐसे स्ट्रेट रखी चिपका के. टच. और ये बन गई हमारी शंख मुद्रा. ठीक है. अब ये जो शंख मुद्रा है इसके जो बेनिफिट्स है, ये पेट के रोग के लिए लाभदायक है. अगर आपको स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे स्पेसिफिकली खाना आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पेट साफ नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको ये बहुत काम करेगी. गले के रोग के लिए बहुत अच्छी है ये मुद्रा. गले के रोग, अब गले में क्या क्या आता है, टॉन्सिल भी आ सकता है, गला थोड़ा खराश रहती है काफी, वो आप कर सकते हैं.
उसके बाद में थायराइड के लिए गले से रिलेटेड है, आप ये मुद्रा कर सकते हैं। उसके बाद में नाभि, मतलब ये पेट रिलेटेड है, तो आपका जो नाभि है, एक्चुअली बोलते हैं ना कि नाभि चक्र हमारा, स्वादिष्ठान चक्र, मूलादेश, मूला स्वादिष्ठान ही बोलते हैं उसको, तो वो चक्र हमारा ठीक होता है एक्चुअली। तो ये मुद्रा अगर आप करते हैं तो आपका हमेशा पेट ठीक रहेगा, और पेट ठीक रहेगा तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं। तो ये मुद्रा आप कभी भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है, लेकिन अगर आप अपने पेट को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप ये मुद्रा कर सकते हैं। इसके बाद है ध्यान मुद्रा। अब ध्यान सबको पता है कि ध्यान हम कैसे करते हैं, राइट हैंड का जो पंजा है, लेफ्ट हैंड के पंजे के ऊपर बराबर से जब हम ऐसे रखते हैं, दैट इज ध्यान मुद्रा, और फिर नाभि के पास लाके ऐसे, दैट्स इट। ध्यान हम सभी करते हैं, पांचों मतलब उंगलियों को स्ट्रेट रखें, और लेफ्ट पंजे के ऊपर राइट पंजा इस तरीके से कि सभी एक दूसरे को टच होते हैं अच्छे से, और फिर नाभि के पास जाके स्ट्रेट। अब ध्यान मुद्रा के फायदे सबको पता है कि मन को शांत करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको पांचों तत्वों को बैलेंस करना है। तो भी आपको कहा जाता है मेडिटेशन करने के लिए, क्यों? क्योंकि वो मन में शांति लाता है, हमारे बॉडी को बैलेंस करता है, इसलिए मेडिटेशन किया जाता है। तो अगर आप ऐसे ध्यान में भी बैठते हैं तो ये मुद्रा थेरेपी भी काम करेगी। मतलब आपको लग रहा है कि आपको कुछ काम नहीं है, टीवी देखना है, समझ लीजिए, वैसे टीवी देखते देखते नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका ध्यान वहां रहेगा, बट अगर आपको लग रहा है दोनों हाथ खाली है और शांति चाहिए, तो ये मुद्रा भी आप लेके ऐसे ही जस्ट बैठ जाइए, तो वो काम करेगी। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट मुद्रा इज अपान वायु मुद्रा। ये दिस इज द बेस्ट मुद्रा। ये एक ऐसी मुद्रा है जो आपको तुरंत रिजल्ट देती है, ठीक है, और ये करते भी तभी है जब आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, यानी आपको लग रहा है कि आपके बॉडी से गैसेस रिलीज होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है हमको अंदर अजीब सी फीलिंग होती है, ठीक है, तो आप ये वाली मुद्रा, ये देखिए कैसे बनानी है। सबसे पहली फिंगर वायु मुद्रा, इसको अंगूठे के बॉटम से छोड़ना है, ठीक है, और उसके बाद में अंगूठे के टिप को जो आकाश और पृथ्वी है ना उनके टिप से ज्वाइन करना, और छोटी उंगली स्ट्रेट। फिर से बनाएंगे। जो फर्स्ट वायु मुद्रा, उसको अंगूठे के बॉटम से छूना है, और अंगूठे के टिप को आकाश और पृथ्वी के टिप से जोड़ना है, और छोटी उंगली को स्ट्रेट रखनी है। दिस इज अपान वायु मुद्रा, ठीक है। अगर आपको एक्सट्रीमली प्रॉब्लम है पेट रिलेटेड, गैसेस रिलेटेड, तो अगर आप ये मुद्रा लेके वज्रासन में बैठते हैं तो आपको 2 से 3 मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आपको, अगर आपको कोई गैसेस ऊपर से पास होनी होगी तो ऊपर से हो जाएंगी, मतलब आप पेट से होनी तो पेट से हो जाएंगी, और आपको बहुत रिलीफ मिलेगा ये मुद्रा करने से। दिस इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। और अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो उस वक्त आपका पेट भी साफ हो जाएगा। इफ योर सिस्टम इज वेरी गुड तो उस समय तो तुरंत रिजल्ट देती। ओके, फिर से बनाएंगे। सबसे फर्स्ट फिंगर वायु को इसके अंगूठे के आप बॉटम से छू के इन दोनों के टिप को आकाश, पृथ्वी एंड अग्नि को जोड़ेंगे, और सबसे छोटी स्ट्रेट रखेंगे, अपान वायु मुद्रा। अब इससे इसके मैं आपको ऑन पेपर जो इसके फायदे वो पढ़ के बता रही हूँ। अधिक वायु से बढ़ने वाले जो हृदय रोग है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना गैसेस से भी किसी को हार्ट अटैक आया, कभी सुना है? सुना होगा कि हमको लगता है कि उनको हार्ट अटैक, पर एक्चुअल में वो एसिडिटी का के वजह से उनको हार्ट में मतलब हार्ट अटैक होता है, ऐसा भी होता है। एसिडिटी इज वेरी डेंजर थिंग। तो इसमें अगर आपको लग रहा है कि आपको छाती में कर्ड निकल रही है, ऐसा होता है ना आपको डायफ्राम्स में ऐसा लगता है कि ज्यादा गैसेस हो गए, उस समय ये दिस इज द बेस्ट मुद्रा। सो अधिक वायु से बढ़ने वाले हृदय रोग, छाती में कर्ड निकलना, और बहुत बार एसिडिटी से हेडेक भी होता है आपको, उस समय में ये मुद्रा बेस्ट है। गैसेस की तकलीफ कम होती है। अगर आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज होती है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सिचुएशन आती है तब हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, किसी किसी व्यक्ति को देख के भी हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। कभी कभी हमको कोई टॉपिक पे बात करनी होती तो तभी भी हम थोड़े डर जाते हैं, उस समय में आप ये वाली मुद्रा कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट मुद्रा। उसके बाद अगर आपको दांत का दर्द है, बीपी का प्रॉब्लम है, छाती में जलन है, शरीर के में तापमान अगर बढ़ने से बुखार है, शरीर का तापमान अगर आपका बढ़ चुका है तो उसको भी बैलेंस करती है ये वाली मुद्रा। ओके, सो अवर नेक्स्ट मुद्रा इज लिंग मुद्रा, ठीक है। अब ऐसे बनानी है लिंग मुद्रा। कैसे? दोनों हाथों का उपयोग है, दोनों को जोड़ लो, उसके बाद में दोनों को इंटरलॉक कर दो,
और कोई भी एक अंगूठे को छुपा दो और दूसरा अंगूठा सीधा रखो। ओके, दिस इज लिंग मुद्रा। अब ये वाली जो मुद्रा है ये स्पेसिफिकली आप तभी करना जब आप बहुत ठंडी में है, आपके मतलब जैसे आप मनाली घूमने गए और आपको लग रहा है कि बहुत ठंड है, अगर आप उस वक्त ये मुद्रा करते हो तो आपको एक वार्म फीलिंग आएगी, आपके शरीर में वो इतनी हीट बढ़ाती है कि बर्फ में आपको पसीना आएगा। तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, उस समय ये मुद्रा आपको करनी है, तो इससे भी आपका वेट लॉस होता है। लेकिन वेट लॉस इसलिए शुरुआत इस मुद्रा की 10 मिनट से करें, क्योंकि बहुत बार बॉडी में अगर आपको लग रहा है हीट बढ़ गई और बहुत लोगों को हीट सूट नहीं होती है, होता है प्रॉब्लम, तो वो लोग ये मुद्रा नहीं करेंगे। लेकिन जिनको लगता है कि जिनको प्रॉब्लम नहीं है थोड़ी बहुत हीट, तो 10-15 मिनट ये मुद्रा कर सकते हैं, इससे बहुत जल्दी वेट लॉस होता है। ठीक है, अब ये मुद्रा कब काम आती है? जब आपको सर्दी खांसी हो, सिंपल, क्योंकि बॉडी में इतनी हीट जनरेट करती है, तो आपको सर्दी खांसी कफ है तब आप ये मुद्रा कर सकते हैं। एक बार करके देखेंगे। दोनों हाथों की फिंगर को इंटरलॉक कर लिया, इस तरीके से हाथों को टच कर लिया और कोई भी एक अंगूठे को ऐसे कर दो और एक को सीधे रखो। दिस इज लिंग मुद्रा। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें सर्दी खांसी खत्म होती है, फेफड़ों से जुड़े रोग, मैंने आपको बोला कफ, अगर आपको लंग्स में जैसे कफ जम जाता है या लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में इस मुद्रा से हीट बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो उसका प्रिकॉशन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ जलोदर नाशक मुद्रा। जलोदर नाशक मुद्रा, अब ये क्या है? जलोदर एक्चुअली एक रोग है, ये अब जो हम मुद्रा लेके आगे जो मैं बात करने वाली हूँ, ये बड़ी बीमारियां और स्पेसिफिक जो बीमारियां उनके लिए है। जलोदर करके एक रोग होता है जब आपके बॉडी में बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं जलोदर रोग, जलोदर, तब ये मुद्रा बहुत ज्यादा काम आती है। तो आपको सबसे छोटी जो उंगली है, सबसे छोटी उंगली, उसको आपको अंगूठे के बॉटम से छूना है और इस तरीके से अंगूठे से उसके ऊपर प्रेस देना और तीनों उंगलियां स्ट्रेट रखनी है, लाइक दिस। ओके, ये जलोदर नाशक मुद्रा, ये आपको काम आती है शरीर में जब बहुत ज्यादा पानी आपका जमा, जैसे मैंने आपको बोला कि पानी जमा होने से जो रोग होता है, तो ये स्पेसिफिकली अगर आपको जलोदर नाम का कोई रोग हो या फिर अगर आपको डॉक्टर से पता चले कि आपकी बॉडी में पानी ज्यादा जमा हो गया कोई ऑर्गन में, तो आप ये वाली मुद्रा कर सकते हैं। तो इससे आपका जो एक्सेस वाटर है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपकी आंखों से पानी बह रहा है, जैसे मैंने आपको बोला पानी ज्यादा जमा है, तो आंखों से भी किसी के देखो किसी की आंखों से बहुत ज्यादा पानी बहता है, किसी की नाक से भी पानी बहुत ज्यादा बहता है, ऐसा होता है। बहुत ज्यादा टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है, तभी भी आप ये मुद्रा कर सकते हैं। किसी को बहुत एक्सट्रीम पसीना आता है, तभी भी आप ये मुद्रा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ किडनी मुद्रा। किडनी मुद्रा कैसे करनी है? अब ये स्पेसिफिकली किडनी मुद्रा है, तो किडनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप ये मुद्रा कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई इंसान अगर एक ही किडनी पर है तो उसको भी ये मुद्रा बहुत कारगर है। ठीक है, ओके। नाउ अब ये आपका सबसे छोटी फिंगर और जो आपकी रिंग फिंगर है, इसको अंगूठे के टिप से जोड़ना है बॉटम से और अंगूठे से दोनों पे प्रेस करना है इस तरीके से कि दोनों को छुए आपका अंगूठा, और दोनों उंगली स्ट्रेट रखनी है। आपकी वायु और आकाश को आपको स्ट्रेट रखना है। फिर से बनाएंगे, सबसे छोटी उंगली और रिंग फिंगर पृथ्वी तल पर, मतलब इसको आपको अंगूठे के बॉटम से टच कर लो लाइक दिस, और अंगूठे से दोनों पे प्रेशर दो एंड इसको जो रेस्ट ऑफ द फिंगर इसको स्ट्रेट रखो। दिस इज नाउ। अब ये किडनी मुद्रा है तो आपको इसमें इसके 3-4 फायदे और है। किडनी रिलेटेड तो सारे रोगों में कारगर है, और अगर आपको टॉन्सिल्स और गले में दर्द है तो भी आप ये मुद्रा कर सकते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम योनि मुद्रा। ये स्पेसिफिकली लेडीज के लिए है योनि मुद्रा। ठीक है, अब आपको कैसे बनानी है? दोनों हाथ को जोड़ ले, दोनों हाथों से दोनों फिंगर को इंटरलॉक कर ले, और जो पहली जो उंगली है मतलब वाली फिंगर आपकी, और दोनों के टोक को और दोनों के थंब को इस तरीके से करें। ठीक है, फिर से बनाएंगे, इसको ऐसे कर लिया, इंटरलॉक कर लिया, उसके बाद जो पहला वाले दोनों फिंगर के टिप को जोड़ेंगे, अंगूठे की टिप को जोड़ेंगे और ऐसे रखेंगे। ठीक है,
और ये पेट के सामने ही रखना है, आपका जो बेली बटन है नाभि उसके सामने रख के ही आपको ये मुद्रा करनी है। आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ये वाली जो मुद्रा है ये स्पेसिफिकली मेनोपॉज के लिए है। जो भी लेडीज को लग रहा है आगे इस एज में आफ्टर 35 या 40 के बाद जिनको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मुद्रा करने से लोगों के ऑपरेशन भी टल गए। ऐसे कई मेरे सामने उदाहरण है जिनका ऑपरेशन वो डेली, लेकिन वो ये मुद्रा 45 मिनट्स डेली करते थे, तो उसने उनका ऑपरेशन टला। ऐसे पेट के सामने रख के करना। ओके, अब है आदित्य मुद्रा। नेक्स्ट मुद्रा है आदित्य मुद्रा। आपकी जो चारों फिंगर है, सबसे छोटी उंगली के जो बॉटम है उसको अंगूठे के टिप से छूना है, लाइक दिस। दिस इज आदित्य मुद्रा। ओके, फिर से बनाएंगे। सबसे छोटी उंगली का जो बॉटम है, अंगूठे के टिप से उसको छूना है, दैट्स इट, और ऐसे बैठ। दिस इज आदित्य मुद्रा। आदित्य मुद्रा जो है उससे स्टैमिना बढ़ता है और वजन बढ़ता है। उसके अंदर बार बार छींक आने का जिसको प्रॉब्लम रहता है, जैसे सुबह उठते हैं, सर्दी नहीं है बट छींक आती है, होता है, या इन जनरल भी कभी एक साथ बहुत छींक आती है, तो तुरंत ही मुद्रा कर लीजिए। उसके बाद बार बार उबासी आती है। बहुत बार ऐसे लोगों को होता है, पढ़ने बैठेंगे उबासी आएंगी, बात करेंगे उबासी आएंगी, कुछ मतलब अगर अननेसेसरी हो रहा है तो फिर तो भी आदित्य मुद्रा आपको काम आएगी। अब है व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा कैसे बनानी है आपको? ठीक है, अंगूठे का टिप और वायु और आकाश का टिप, इन तीनों के टिप को जोड़ दिया और बची हुई दोनों उंगली स्ट्रेट। दिस इज व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा है ब्लड प्रेशर के लिए। अगर ब्लड प्रेशर कम हो या ज्यादा हो उसको बैलेंस करेगा। उसके बाद में आपका कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, एक्साइटमेंट को बढ़ाएगा। तो अगर आपको लू और गर्मी, अगर लू लग जाती है, बोलते गर्मी अगर बहुत ज्यादा, जैसे गर्मी का सीजन आ रहा है तो बोलते हैं हम धूप में जाते हैं तो सनस्ट्रोक होता है, तो उसमें भी आप ये बहुत ज्यादा कारगर है। आप ये मुद्रा ले, आप धूप से अगर घर में आए तो आप 5 मिनट की मुद्रा कर लीजिए, तो एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड। और अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सेस पसीना आ रहा है, आपको एक्सेस प्यास लगती है, लूज मोशन है, तो उसको भी ये चीजें कम कर देगा व्यान मुद्रा। ओके, अब है नेक्स्ट मुद्रा इज म्याऊ मुद्रा। वो कैसे बनानी है? जो आपकी बीच की जो 2 उंगलियां है, आकाश और पृथ्वी, इनको ऐसे छूना है और बाकी सबको स्ट्रेट रखो। दिस इज म्याऊ मुद्रा। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए, हाई बीपी, लो बीपी, ठीक है, उसको ये नॉर्मल, अगर आप डेली करते हैं इसको 20 से 25 मिनट कम से कम, तो आपका जो बीपी है वो धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएगा, और जो एमजी की जो आप जितनी दवाई खाते हैं तो वो एमजी भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर 45 मिनट तक इसको डेली कर लेते हैं तो मैंने सुना है ऐसा कि इसकी दवाई भी आपकी बंद हो जाती है, क्योंकि वो जो देखो मुद्रा थेरेपी क्या करता है, आपके बॉडी में जो 5 तत्व है जिससे आपका शरीर बना है, वो